It started now. Yes, so in the gate, you have this is the syllabus for communication system, which combines analog communication as well as digital communication. Okay. So in this syllabus, we have first random processes, which includes autocorrelation and power spectral density, properties of white noise, filtering of random signals through LTI system. Then we have analog communications in which modulation is there, amplitude modulation, it's demodulation, angle modulation and demodulation, spectra of AM and FM, then super heterodyne receivers. In the next topic, we have information theory, which includes entropy, mutual information, and channel capacity theorem. In the last, digital communication topics are there, in which we have PCM, DPCM, digital modulation schemes. It includes ASK, PSK, FSK, and QM. Its bandwidth, intersymbol interference, MAP, ML detection, match filter receivers, SNR and BR, fundamentals of error correction, Hamming code, and CRC. So, for preparation of this content, we can refer these books. Okay, mostly this communication electronics book by Kennedy is the standard book that we consider. And for analog and digital combined, we can refer BP Lattice book. Next, I will suggest this analog and digital communication book by T.L. Singh. Okay, other books you can refer for some of the topics. Again, one more Indian author book, that is book by Godse Bakshi, that also you can refer for easy concepts. Okay, so let us start with the topic that is communication system. So first, we need to see what is communication. Okay, communication मतलब होता क्या है? Yes, can anybody answer? What is communication from final year? Yes. Who has answered? Very good, Ashvi. Okay, that exchange of information. As Ashvi has said, communication is nothing but the exchange of information, exchange of knowledge. Okay, so in between two points, okay, from one place to another place, if the information transfer, that we called it as a communication. Okay, so this is the transfer of information. Okay, now in this, in which form we are transferring the information, that is most important. कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, one sender is sending the information, receiver is receiving the information. Okay, we have 2 points, sender and receiver. So we cannot say that the communication is successful until and unless it is fruitful communication. Means sender ने जो भेजा है वो रिसीवर को समझना भी जरूरी है. Is it correct? ऐसा नहीं है कि सेंडर ट्रांसमिट तो कर रहा है लेकिन रिसीवर एंड पे रिसीवर को वो इंफॉर्मेशन अगर समझ ही नहीं रही, उससे कुछ उसको नॉलेज नहीं मिल रहा, तो इट इज नॉट कॉल्ड एज द प्रॉपर कम्युनिकेशन. इट इज यूजलेस कम्युनिकेशन. सो फॉर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन वी नीड द proper understandable language. Okay, so that the information must be transferred from sender to receiver. Again, there is another most important thing is the distance. Okay, uh, if we consider the distance, if the sender and receivers are in front of each other, then it's very easy for transferring the information. But if the sender and receiver are at the far end, okay, दोनों भी अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो हमको कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ मतलब कुछ मीडियम ढूंढना पड़ेगा, बराबर है. तो
that medium is also important in the लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. ठीक है, दोनों के बीच में ट्रांसफर होना चाहिए. कम्युनिकेशन जो भी हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं वो सेंडर से रिसीवर तक प्रॉपर ट्रांसमिट होना चाहिए. दैट्स व्हाई शॉर्ट डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन आपका इजी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे वी नीड सम मीडियम फॉर ट्रांसमिशन. ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है आपको दूसरे दूसरे मीडियम्स का यूज करना पड़ता है. ओके, सो for the communication mostly we consider the communication between humans because we only need the communication. Okay, so there are various methods in the communication. If both are at the same place, the face to face communication is possible. For some distance place, we can use the written communication or through the letters. The communication can be through signals. Okay, then for very long distance communication, new electronic communications are involved that includes telegraphy, telephone, radio, television, internet. Now, telegraphy and telephone, these are the you can say very old ways of communication. टेलीग्राफी अभी तो यूज नहीं होता, टेलीफोन्स भी अभी नहीं है. So telephones are replaced with the now mobile communication, or you can say the radio transmission. And then television and internets are mostly now the communication is done by the internet through the computer by using the various mediums. Okay. So this communication was involved, or it is started basically in 1844 with the telegraphy. And telegraphy generally codes are transmitted or some few letters are transmitted. Okay, वहाँ पे बहुत ही कम मतलब डेटा ट्रांसमिशन होता था. After that, in 1876, telephones were involved, and through that we can transmit voice. Okay, so जब भी हमको communication करना है, so main basic components उसमें क्या क्या रहेगा? We need transmitter और रिसीवर. ठीक है, और ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में अगर आपको कुछ डेटा ट्रांसमिट करना है, से वी नीड सम चैनल और मीडियम. किसी के तो भी थ्रू वो डेटा ट्रांसमिट होता है. अगर आप अपनी वॉइस की भी बात करो तो वॉइस कैसे ट्रांसमिट होता है? इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर. तो इफ एयर इज नॉट देयर, यू कैन नॉट ट्रांसमिट योर वॉइस. ओके, सो until and unless and medium is present, you cannot transmit your data. Okay, so this is the important. And you can see in the transmitter we have the source of information. Transmitter में क्या आएगा कि हम जो भी information है that is converted into some transferable form, कि आपका ट्रांसमीटर उसको ट्रांसमिट कर सके. ओके, ऐसे फॉर्म में उसको पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही ट्रांसमीटर ट्रांसमिट्स दैट इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर यूजिंग द डिफरेंट चैनल्स. अब चैनल्स में क्या क्या आता है? अब चैनल्स में हमारे जैसे दो टाइप्स होते हैं, वायरलेस एंड विदाउट वायर, सॉरी, वायरलेस एंड वायर्ड. सो वायरलेस मतलब थ्रू द एयर, जहाँ पे आपके फिजिकल कनेक्शन नहीं होता. ओके, सो दैट इज विदाउट वायर कम्युनिकेशन. देन वी हैव कम्युनिकेशन विथ वायर. तो उसमें क्या क्या आएगा? एक तो नॉर्मल केबल्स आते हैं, उसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल्स आते हैं, कोएक्सियल केबल्स है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स आर यूज फॉर द मीडियम. ओके, रिसीवर में भी ऐसा देखो, इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हुई, चैनल के थ्रू रिसीवर तक आई, तो रिसीवर में भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिसीव करे, जो ट्रांसमिट हुई है वही इंफॉर्मेशन रिसीव करे. सो देयर मस्ट बी दी प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन योर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. जैसे मैं बोल रही हूँ कि लैंग्वेज एक है, तो जहाँ जिस लैंग्वेज में हमने ट्रांसमिट किया डेटा उसी लैंग्वेज में रिसीव होगा, तो रिसीवर पे वो लैंग्वेज समझना चाहिए. मैंने अगर किसी कोड लैंग्वेज में ट्रांसमिट किया डेटा तो वो कोड लैंग्वेज रिसीवर को समझनी चाहिए, देन ओनली इट इज द फ्रूटफुल कम्युनिकेशन. ओके, अब जब आपका डेटा ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रांसमिट होता है
तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है, दैट इज नॉइस। ओके, तो जितना भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, इन ऑल द कम्युनिकेशन नॉइस इज इंसर्टेड इनटू दैट। ओके, ऐसा होता ही नहीं कि आपका सिग्नल प्योरली ट्रांसमिट हो रहा है, कोई ना कोई नॉइज उसमें इंसर्ट होता ही है। नॉइज में भी अलग अलग टाइप्स के नॉइज होते हैं, यू कैन से नेचुरल नॉइज है, फिर आपके इंडस्ट्रियल नॉइज है, एनी नॉइज, ऑटोमोबाइल नॉइज है। ओके, सो दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइज आर देयर विच अफेक्ट्स द कम्युनिकेशन। तो जब भी कम्युनिकेशन का आप कोई भी डिवाइस डिजाइन करते हो, या जब भी कम्युनिकेशन के लिए कुछ एप्लीकेशन डिजाइन करते हो, तो उस केस में आपको नॉइस भी कंसीडर करना पड़ता है, दैट हाउ वी रिड्यूस द नॉइस ड्यूरिंग द transmission or the communication. Okay, so this we have covered. Now in the transmitter we have various devices like oscillators, amplifiers, tune circuit, filters, modulators, then mixer, frequency synthesizer and many more. क्योंकि जो भी हम सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं, ओके, तो वो सिग्नल एक हमको ट्रांसफरेबल फॉर्मेट में ट्रांसमिट करना होता है। कि हमने जैसे कुछ सिग्नल्स जनरेट किए, वॉइस अगर मैं कंसीडर करती हूँ, तो वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैं ज्यादा डिस्टेंस में ट्रांसमिट नहीं करती, फिर किस फ्रीक्वेंसी का मेरा नॉइस जा रहा है उसमें, उसको उसके लिए फिर फिल्टर्स लगेंगे। ओके, सो वी नीड टू प्रोसेस दैट सिग्नल्स एट द ट्रांसमीटर एंड, और जो हम ट्रांसमीटर एंड पे प्रोसेसिंग करेंगे उसके अपोजिट आपको रिसीवर एंड पे लगेगा। जैसे कि मैंने ट्रांसमीटर पे मॉड्यूलेटर्स यूज होते हैं, मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो दिस मॉड्यूलेटर्स आर देयर इन द ट्रांसमीटर, सो एट द रिसीवर साइड वी नीड डीमॉड्यूलेटर्स। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ अगर मल्टीप्लेक्सर यूज किया तो उधर मुझे डीमल्टीप्लेक्सर लगेगा। Likewise we need the devices in the transmitter and receiver. Okay, so these are the communication channels. uh, there are various medias, that electrical conductors, optical, free space. Okay, so water is also the medium for the communication in case of the sonar systems. Then after that we have the receivers, and the receiver is again the complicated circuit which receives the your transmitted signals, एंड इट शुड बी इन दी, मतलब वो कन्वर्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। मगर मैंने यहाँ से वॉइस ट्रांसमिट किया तो उधर भी वॉइस ही आना चाहिए, बराबर है। और जो वॉइस जो मैंने बोला है वही रिसीव होना चाहिए, राइट। जैसे कि मैं अभी आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तो आपके साइड में वॉइस ही आ रहा है, राइट। सो यहाँ से मेरी बात करना और आपके एंड पे रिसीव होना, तो ये प्रॉपर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इट इज बिकॉज ऑफ दी आपके रिसीवर और ट्रांसमीटर के जो सिंक्रोनाइजेशन है उसकी वजह से, राइट। तो रिसीवर इज मेड अप ऑफ अगेन दी एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, मिक्सर्स, demodulators are there, detectors. Okay, so these many things are there in the receiver. After that, receivers are also available. This is required in case of two-way communication. Okay. This is noise, which is important parameter in the communication system. So noise may be random, it is undesirable signal, and we need to remove this noise from the your transmitted signals. Now let us see the different types of communication. अब टाइप्स में ऐसा है कि डिपेंडिंग ऑन दी आप कैसे कम्युनिकेशन करते हो उस पे अलग अलग ये होता है, और कौन से सिग्नल से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस पे भी टाइप होता है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज वन वे और टू वे। इसमें हम इसको वन वे मतलब सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं, और टू वे मतलब डुप्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो टाइप है वो होता है सिग्नल बेस पे, तो दैट उस केस में हमारे दो टाइप्स आते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। आफ्टर दैट इन दिस सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स मतलब क्या होता है, इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन, मीन्स
सिर्फ ट्रांसमीटर आपका इंफॉर्मेशन भेजते रहेगा, फ्रॉम द रिसीवर साइड इट ओनली रिसीव्स। ओके, तो आपकी इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होती है, उसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। एंड इन दिस योर एग्जांपल्स आर, यू कैन कंसीडर एज रेडियो, उसके बाद टीवी ब्रॉडकास्टिंग, बीपर। तो इसमें क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन एक ही एंड से ट्रांसमिट होती है ना। टीवी पे आपका सिग्नल्स आते हैं, टीवी से हम वापस भेजते हैं क्या कहीं पे, नहीं, है ना। तो सो दिस इज द सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसमें सिर्फ कम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट, और मतलब ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा। ओके, अब दूसरे टाइप है, इसमें हमारा क्या है, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब रिसीवर और ट्रांसमीटर, ठीक है, जो दोनों हैं, तो दोनों एंड पे आपके दोनों अवेलेबल रहेंगे। ओके, सो एक डायरेक्शन से आप ट्रांसमिट भी कर सकते हो, उसी डायरेक्शन से रिसीव भी कर सकते हो, दूसरे एंड पे भी आप ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हो। सो द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज योर टेलीफोन और दी मोबाइल सिस्टम्स, है ना। मतलब मोबाइल से आप सुनते भी हो और बोलते भी हो, तो दिस इज द टू वे कम्युनिकेशन। और एक इसमें है हाफ डुप्लेक्स करके, तो हाफ डुप्लेक्स में भी टू वे ही कम्युनिकेशन होता है, लेकिन इसमें कैसा होता है कि जब एक साइड से ट्रांसमिट हो रहा है डेटा, तो दूसरे साइड से वो ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ठीक है। एट अ टाइम एक ही साइड से ट्रांसमिट होगा, एक ही साइड से रिसीव होगा। ओके, सो इसमें एक बेस्ट एग्जांपल है आपका वॉकी टॉकीज। ओके, वॉकी टॉकी में क्या होता है कि एक साइड से एट अ टाइम एक ही पर्सन बात करता है, उसकी बात खत्म हुई तो दूसरे साइड का पर्सन बात कर सकता है। ठीक है, तो एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन से कम्युनिकेशन होता है, लेकिन दोनों डायरेक्शन से कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, दैट इज द हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव बेस्ड ऑन द सिग्नल्स यूज फॉर द कम्युनिकेशन। उस पे हमारे दो टाइप्स हैं, दैट इज एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो एनालॉग कम्युनिकेशन में हम एनालॉग सिग्नल्स यूज करते हैं। वैसे तो मोस्टली आपका एनालॉग ही ट्रांसमिशन होता है, बट दैट एनालॉग सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन दिस। तो एनालॉग सिग्नल्स मतलब क्या है आपका, कंटिन्यूअस सिग्नल्स, जैसे कि साइन वेव, वॉइस, वीडियो सिग्नल, दीज आर ऑल दी एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो लाइक दिस साइन वेव, वॉइस सिग्नल, वीडियो सिग्नल्स आदि है। तो इस केस में ट्रांसमिशन जो है वो आपके कुछ केस में कैसा है कि एनालॉग ही डिवाइसेस पूरे यूज होते हैं, लेकिन इन सम केसेस हम वो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसमिट करते हैं। दिस इज ऑल्सो द केस। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल्स आपके कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, जैसे कि डिजिटल मतलब इन द डिस्क्रीट सिग्नल। ओके, तो डिस्क्रीट सिग्नल में मोस्टली हम कोड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे टेलीग्राफी में हम मोर्स कोड यूज करते थे, इट्स अ वेरी ओल्ड मेथड फॉर कम्युनिकेशन। देन कंटिन्यूअस वेव कोड्स आर यूज, बाइनरी कोड्स। अब मोस्टली आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो तो बाइनरी कोड्स में होता है। आपका डिजिटल जो हम पूरा जहाँ जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है नाउ डेज, इट इज इन द डिजिटल फॉर्म। ओके, सो दिस आर द डिजिटल सिग्नल्स। सो दिस जो शोज दे सम एग्जांपल्स, ये जो है डॉट डैश डॉट, ये आपका मोर्स कोड में यूज होता था, कंटिन्यूअस कोड में यूज होता था। और लाइक लॉजिक वन एंड लॉजिक जीरो, वैसे तो लॉजिक वन जीरो में ही होता है सारा कम्युनिकेशन, लेकिन थोड़े से उसके फॉर्मेट्स अलग थे। ठीक है, तो ये मार्क और मार्क मतलब लॉजिक वन को मार्क बोलते थे, स्पेस मतलब लॉजिक जीरो। तो ये स्विच ऑन ऑफ के वजह से आप उसको सिग्नल्स जनरेट करते थे, सो दैट इज आल्सो द डिजिटल कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट इज लास्ट जो है, इट इज बाइनरी कोड इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। सो अभी कैसा है कि हम सारा ही कम्युनिकेशन जो है उसमें कैसे कहते हैं, इनपुट सिग्नल जो है वो एनालॉग होता है। ठीक है, तो वो एनालॉग सिग्नल्स को हम फिर ए टू डी कन्वर्टर से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है at the receiver end. Again then digital signals are converted into the analog one, and then it is converted into the suitable form. Okay, so this is the way of communication. Okay, so अभी communication
करने के लिए आपको सिग्नल्स को प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसमिट करना पड़ता है, ऐसा मैंने बोला, ठीक है। तो व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द प्रॉपर फॉर्मेट। अब देखो जैसे अपना जो वॉइस सिग्नल है, ओके, वॉइस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज? यस, इट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ओके, तो ये जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है ये बहुत कम है फॉर ट्रांसमिशन। तो वॉइस सिग्नल में अगर डायरेक्टली मुझे कहीं ट्रांसमिट करना है, अगर मैं मेरे घर से बाजू के घर तक बोलूँ तो मेरी आवाज जाएगी, लेकिन मैं बाजू की कॉलोनी में अगर मैं कुछ बात करना चाहूँ तो इज इट पॉसिबल टू ट्रांसमिट माई वॉइस डायरेक्टली? इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। क्योंकि क्या है कि जब भी आपका सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल अटेन्यूएट होता है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होते हुए जाती है। ओके, तो इसके सिग्नल्स की स्ट्रेंथ डिस्टेंस के साथ कम होती है। तो ये सिग्नल्स मुझे अगर लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करने हैं, सो आई नीड टू ट्रांसमिट दिस सिग्नल विद द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के साथ कंबाइन करके फिर उसके साथ भेजते हैं, ठीक है। अब आप मतलब एयर में भी अगर आप सिग्नल भेज रहे हो तो उस केस में भी अटेन्यूएशन होता है। अगर आप वायर के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो तो उस केस में भी सिग्नल अटेन्यूएशन होता है, क्योंकि डिस्टॉर्शंस जो है वो सभी केस में हो रहे हैं। वायर में भी आपका कुछ डिस्टॉर्शन होता है सिग्नल्स का, और एयर में भी। सो दैट्स व्हाई we need to transmit the signals with the high frequency signal, okay। so the, अब ये जो प्रोसेस है मॉड्यूलेशन, इसमें क्या होता है कि हम उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ अपने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। और मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि हम एट अ टाइम एक ही फ्रीक्वेंसी रेंज में कई नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब थ्रू द सिंगल वायर वी कैन ट्रांसमिट एन नंबर ऑफ सिग्नल्स, दैट इज द मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब एक ही मीडियम से हम एक से ज्यादा सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लेक्सिंग, ओके। सो मॉड्यूलेशन में बेसिकली क्या होता है, आपके ओरिजिनल सिग्नल, मतलब उसको हम बोलते हैं बेस बैंड इंफॉर्मेशन, बेस बैंड ट्रांसमिशन, ठीक है। ये क्या होता है आपका ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो ये सिग्नल को हम we convert it into the or we transmit it with the high frequency signal, that is the carrier signal। high frequency signals को हम क्या बोलते हैं? carrier signal। so ये बेस बैंड सिग्नल्स को ही हम कैरियर सिग्नल के साथ कंबाइन करते हैं, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन प्रोसेस। सो दैट यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स, ओके। सो मोस्टली आपके ये जो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल है, इट इज इन विच वी यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स इन केस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। जब भी वायरलेस कम्युनिकेशन होता है तो इट इज थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। Okay, so in this broadband transmission, we use basically this is the analog type of modulation, in which we have amplitude modulation, frequency modulation, and phase modulation. So basically, what is modulation? Yes. See, the modulation is nothing but the process, or in the modulation, the baseband signal is modified. Okay, it modifies the another high frequency signal, that is what? Carrier signal, okay। the baseband signal मतलब क्या है? Information signal। so according to the information signal, according to the इसको हम modulating signal भी बोलते हैं। as per the modulating signal, carrier frequency change its amplitude, frequency और phase, ओके। सो इसमें देखो मॉड्यूलेटर जो है, इसको हमने क्या दिया है इनपुट? एक तो
योर इनपुट इज थ्रू माइक्रोफोन, मतलब वॉइस एंड अदर इंटेलिजेंस, उसको एम्पलीफाई करेंगे, वी गेट द बेस बैंड सिग्नल, वो दिया जाएगा मॉड्यूलेटर को, और मॉड्यूलेटर को दूसरा इनपुट देंगे हम हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर ऑसिलेटर से, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ मर्ज होगा, सो विल गेट द modulated carrier signal. It is then given to the again amplifier for the transmission through antenna. Okay, तो देखो इसके इसमें देखो इट शोज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड अगर चेंज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर कैरियर सिग्नल का फेज चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं phase modulation. Okay, so like in this case, okay, I'll just draw. Okay. So this is the sine wave and this is the carrier is also the sine signal. Okay, carrier भी sinusoidal signal ही होते हैं, but it is having high frequency. Okay, you can see. अब इस केस में I cannot draw the carrier with constant amplitude. ठीक है, अब ये होता है इसका एम्पलीट्यूड फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, इस केस में ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये मैं डिनोट करूंगी एम ऑफ टी से। ठीक है, तो ये क्या है, इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज विथ लो फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। ठीक है, अब कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड जो है कैरियर सिग्नल की यहाँ पे कांस्टेंट होती है। ठीक है, जब हम उसको मॉड्यूलेटर के में कंबाइन करते हैं विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, उस केस में इफ आई एम यूजिंग द एएम मॉड्यूलेशन तो आई विल गेट द सिग्नल्स लाइक दिस। तो इस केस में क्या है, ये कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी हो रही है ना। तो एम्पलीट्यूड अगर वेरी है इट्स मीन इट इज अ एएम मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के हम एम्पलीट्यूड वेरी कर रहे हैं। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है, फ्रीक्वेंसी में कैसे होता है फॉर दिस हाई, ठीक है, ये जो प्लस है हाई पॉजिटिव वेव है उसके लिए आपको हाई फ्रीक्वेंसी मिलती है, और जैसे जैसे निगेटिव आता है फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड, हाई पॉजिटिव साइकिल के लिए फिर से फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलती है। सो यहाँ पे ऐसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ठीक है, अब फेज मॉड्यूलेशन में क्या है, फेज मॉड्यूलेशन में भी फेज चेंज होता है। अब या इसमें कैसे, पॉजिटिव के लिए लाइक दिस, तो जैसे फेज चेंज होता है ना तो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी चेंज होती है। okay, frequency and phase both are related with each other, so frequency और phase modulation इसको हम angle modulation भी बोलते हैं। okay, it is nothing but the angle modulation। okay, so this is the AM modulation and this is the angle modulation। angle modulation के अंडर हमारे दो टाइप्स है, फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन। ओके, सो मॉड्यूलेशन से हमको जो है क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं दैट विल सी। okay, so this is the definition of modulation. In the modulation process the baseband signal modifies another high frequency signal, it is called the carrier, और carrier is usually sine wave। ठीक है, ये हमने देख लिया। so characteristics of high frequency signal is change according to the instantaneous amplitude, frequency and phase of the information। okay, that is nothing but the modulation। okay, so modulation से क्या होता है कि
हमारा जो ट्रांसमिशन है लॉन्ग डिस्टेंस पे पॉसिबल होता है। विद द मॉड्यूलेशन हम मल्टीपल सिग्नल्स एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, सो it we can use capacitive and inductive devices for high frequency input. अगेन स्टेबिलिटी इज मोर इन केस मतलब मॉड्यूलेशन यूज करके आपको स्टेबिलिटी मिलती है सिग्नल्स में, और नॉइज रिजेक्शन जो है वो पॉसिबल होता है। ओके, सो विद द मॉड्यूलेशन यू कैन ऑल्सो रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना। अगर हमने मॉड्यूलेशन यूज नहीं किया तो आप इमेजिन भी नहीं करोगे इतनी ज्यादा एंटीना की हाइट रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो विद द मॉड्यूलेशन ओनली दिस अपनी एंटीना की हाइट जो है वो आपकी रिड्यूस हो रही है। ओके, और उस साथ ही साथ आप मल्टीपल सिग्नल्स भी ट्रांसमिट कर रहे हो। मल्टीपल सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हो तो हो सकता है कि कुछ सिग्नल्स मिक्स हो, लेकिन अब मॉड्यूलेशन में हमने जो मॉड्यूलेशन यूज किया तो उसकी वजह से आपका मिक्सिंग जो है सिग्नल्स का मिक्सिंग विद द अदर इंटरफेयरिंग सिग्नल्स दैट इज आल्सो रिड्यूस। ओके, so these are some of the benefits of modulation. Okay, now अब ये जो हम सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हम कुछ पर्टिकुलर रेंज में ट्रांसमिट करते हैं, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। ओके, so that we called it as a bandwidth. So what is bandwidth? Bandwidth मतलब क्या था? It is nothing but the frequency range occupied by the signal. Okay, तो ये जो voice signal है, so voice signal is having the frequency range from 300 hertz to 3 kilohertz. Okay, ये कैसी है? एक फ्रीक्वेंसी की रेंज दी है ना? तो इस केस में इस फ्रीक्वेंसी रेंज से हमको क्या पता चलता है? दी बैंडविड्थ। सी, तो वॉइस सिग्नल just a minute. So voice signal is having the range from 300 to 3 kilohertz. 300 hertz to 3 kilohertz. So how we calculate the bandwidth? What is the bandwidth? Can anybody tell me? This is the range. ये फ्रीक्वेंसी बैंड है, तो यहाँ से यहाँ तक के ही सिग्नल्स आपके ट्रांसमिट होंगे इन केस ऑफ वॉइस सिग्नल। ठीक है, तो ये जो रेंज है इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। ओके, दैट इज द बैंडविड्थ। So how we calculate this? Suppose this we called it as F1 and this is F2. So bandwidth is given as F2 minus F1. Okay, so this is the bandwidth of any signal. Okay, so this way we can calculate the bandwidth. So these are the few terms that are very important in the communication. Okay, now let us start the amplitude modulation in detail. Okay. So these are the few applications in the amplitude modulation where we use it in audio and video signal broadcasting, then mobile and radio communication. Okay. So this is the amplitude modulation. अब ये हम यहाँ पे बेस बैंड सिग्नल इनपुट देते हैं मॉड्यूलेटर को दूसरा इनपुट कैरियर सिग्नल जाता है, विल गेट द मॉड्यूलेटेड आउटपुट सिग्नल विच ट्रांसमिट। ठीक है, जो हम ट्रांसमिट करते हैं वो कौन से सिग्नल होते हैं? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फिर ये रिसीवर साइड में यू हैव डी मॉड्यूलेटर, तो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल फिर डी मॉड्यूलेटर को जाते हैं
और उसका आउटपुट हमको क्या मिलता है फिर अगेन दी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हमने ट्रांसमिट किया। ओके, जो हमने ट्रांसमिट किया वही सिग्नल हमको आपको मतलब डीमॉड्यूलेटर के आउटपुट में मिलेगा। ओके, सो ये क्या हो गया आपका सोर्स साइड या फिर ट्रांसमीटर साइड एंड दिस इज द रिसीवर साइड। ओके, और हर केस में अगर मैं एफ सी बोलो कैरियर फ्रीक्वेंसी है और एफ एम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी ये बहुत ज्यादा होती है एफ एम सिग्नल के हिसाब से। ओके, आपके फ्रीक्वेंसी ये मतलब कुछ हर्ट्स टू किलो हर्ट्स तक जाएगा, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है आपकी मेगा हर्ट्स टू गीगा हर्ट्स में जाता है। ओके, कैरियर फ्रीक्वेंसी। Okay, so this is the amplitude modulation. Okay, so the amplitude of carrier signal is varied according to the instantaneous amplitude of the modulating signal is nothing but the amplitude modulation. Okay, in which the amplitude of the carrier signal varies. Okay, किसकी एम्पलीट्यूड वैरी है हो रही है कैरियर सिग्नल की, किसके हिसाब से हो रही है एज पर दी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, सो if we represent the carrier signal with cos 2 pi fct and or it can be represented as cos omega ct, ठीक है। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम m of t से रिप्रेजेंट करेंगे that whose frequency is given as cos 2 pi fmt और cos omega mt। तो आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है उसको हम कैसे दिखाएंगे, इट इज sam of t is equals to bracket AC plus M of t, the bracket cos 2 pi fct. Now here AC is what? AC is represents the amplitude of the carrier signal. Okay. Of carrier. And AM gives the amplitude of the modulating signal. ठीक है, जिसका मॉड्यूलेशन होने वाला है वो सिग्नल, सॉरी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, अब इस केस में हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा कि एक्चुअली मॉड्यूलेशन जो है वो कैसे हो रहा है ना। तो मैथमेटिकली हम अगर देखते हैं, सो इन दिस केस सी द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द modulating signal is given as, suppose it is small am, so instantaneous amplitude is given as capital Am cos ओमेगा एम टी। ठीक है, तो ये आप मतलब कोसाइन भी हो सकता है साइन भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, देन instantaneous amplitude of carrier signal is given as AC cos omega ct। okay, so with this the amplitude modulated signal जो है its amplitude is given as EC, sorry, AC plus small am। okay, ये क्या है, इट इज दी मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, अब मॉड्यूलेटेड वेव, अब इसकी अगर मैं इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड निकालती हूँ, सो इट इज स्मॉल एस, रिप्रेजेंटेशन किसी भी सिंबल से हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्मॉल एस यूज कर रही हूँ, सो इट इज कैपिटल एस ए एम कॉस ऑफ थीटा। ठीक,
So that can be given as cos omega ct. Okay, so this is replaced with this value. So यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC plus AM. Okay, ये small am I'll replace with this value. And this SM is replaced with this value. Okay, यहाँ पे cos omega mt in the bracket cos omega ct. Okay, so this is your instantaneous amplitude of modulated signal. Okay, up you can see now in case of this, if I represent it with this expression. Okay, अब मैंने क्या निकाला है यहाँ पे, दिस इज द सेम वन बट इस केस में AC को कॉमन निकाला है. ठीक है, इन दिस केस AC इज टेकन आउट कॉमन, so we'll get 1 plus AM by AC. Okay, so AM by AC is denoted with K cos omega mt cos omega ct. Okay, so this expression, this same expression I'm writing here, this is the most important expression, because in the GATE exam mostly AM modulation पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. मतलब जितने भी एग्जाम्स हुए, जैसे 8 से 10 मार्क के लिए आपको कम्युनिकेशन पे आएंगे क्वेश्चंस, तो उसमें से मतलब एक दो क्वेश्चंस जो है वो आपके AM मॉड्यूलेशन पे रहते ही है. मैंने जितने भी अभी पेपर्स देखे, सो AM मॉड्यूलेशन आपको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है. ओके, सो उस केस में आपको ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लास्ट वन. ठीक, अब इसको मैं फिर से सॉल्व करती हूँ. यू कैन सी हियर, तो SAM जो है, ओके, सो इसमें AC कॉमन निकालते हैं. ठीक है, सो मुझे क्या मिलेगा फिर, इट इज 1 plus AM by AC cos omega mt into cos omega ct. ओके, और इफ आई अब ये जो है AM by AC. ओके, सो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स या फिर मॉड्यूलेशन फैक्टर. ओके, सो इट इज रिप्रेजेंट विथ K. अगेन रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई भी सिंबल्स यूज होता है. K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग ऑथर्स अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं. ठीक है, तो एग्जाम में आपको K से भी आ सकता है, M से भी आ सकता है, या डायरेक्ट मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऐसे भी आ सकता है. ठीक है, तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे देंगे हम, आई रिप्रेजेंट विथ K, so it is AM by AC. Okay, that is the amplitude of modulating signal divided by amplitude of the carrier signal. Okay, that is the modulation factor या फिर modulation index. So this is, अब modulation index से decide होता है कि what is, how is your amplitude modulation. ठीक है, so जब भी हम modulation करते हैं, the amplitudes of both the signals are very important. अगर ये रेशियो आपका प्रॉपर नहीं रहा तो इट विल गिव दी इम्प्रॉपर मॉड्यूलेशन, और मॉड्यूलेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो आपका सिग्नल्स भी प्रॉपर ट्रांसमिट नहीं होगा, है ना. सो दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इन द रेंज फ्रॉम 0 to 1. मतलब अगर मैं इसमें लू तो
मतलब डेसिमल्स में ऐसे, तो ये 0 to 1 के इसमें रहेगा। अगर मैं परसेंटेज फॉर्म में लूँ तो 0 to 100% के फॉर्म में मुझे ये मिलता है। ठीक है, सो 0 to 100% के फॉर्म में आपको मॉड्यूलेशन को वैरी करना होता है। okay, so what is the last expression for your modulation? I'll again solve it। ठीक है, इसको हम फिर से ये करते हैं। so here it is SAM equals to AC cos omega CT plus K cos omega MT into cos omega CT। ओके, इसको मैंने फिर से सॉल्व किया दिस एक्सप्रेशन। तो इसको फिर से अपने को सॉल्व करना पड़ेगा इसको, जैसे कि cos A इंटू cos B है ना। तो इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं। सो व्हाट विल गेट AC cos ओमेगा CT प्लस, ठीक है, cos A प्लस cos B। सो आई विल गेट इट K/2 cos omega so I'll take this omega C this is in the bracket omega C minus omega M into T minus cos omega C plus omega M of T। Okay, so like this we'll get the expression here। अब इसको हम फिर से अगर सॉल्व करेंगे so we'll get this is the last expression। You can see ACM of T is equals to cos omega CT plus K/2 cos omega C minus omega MT plus K/2 cos is omega C plus omega MT। okay, तो इस केस में if you see so यहाँ पे तीन आपको so you will get the three parts in the final amplitude modulated wave। okay, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हो गया आपका प्योर कैरियर सिग्नल, राइट। कॉस ओमेगा CT मतलब आपका कैरियर सिग्नल हो गया। आफ्टर दैट you get this one signal and this is another signal। okay, तो ये ओमेगा C है ना ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, तो हियर these are the three parts। okay, so आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट में you have three signals। okay,
Okay, so this AM modulated signal has three parts. Cos omega ct मतलब आपके carrier signal हो गया. Cos omega c minus omega m, so this is the lower sideband, and cos omega c plus omega mt, that is the upper sideband. Okay, तो अगर मैं frequency domain में signals देखूं, so I will get the carrier signal as a center frequency. After that, if it is fc minus fm, so it is the lower sideband and this is the upper sideband. ठीक है, यहाँ पे आप अगर signals में देखेंगे, सॉरी, सो ये आपकी कैरियर सिग्नल होती है, तो ये अपर साइड बैंड होता है और दिस इज द लोअर साइड बैंड. ओके, सो ऐसे टू साइड बैंड्स आपके सिग्नल्स के साथ ट्रांसमिट होते हैं विद द कैरियर सिग्नल. ओके, तो मेन इंफॉर्मेशन जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, इट इज इन द साइड बैंड्स. योर कैरियर सिग्नल इज नॉट कैरिंग एनी इंफॉर्मेशन. कैरियर सिग्नल में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है. इंफॉर्मेशन किसमें होती है? आपके ये दो जो साइड बैंड्स हैं, इसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है. Okay, so that is the main signals carrying with the side bands. Okay, अब दोनों भी side bands में वैसे तो same ही signal transmit हो रहे हैं. The information is same in both the side bands. So what will do? Amplitude modulation के फिर वैसे अलग अलग types आते हैं. Okay, जैसे कि डबल साइड बैंड फुल कैरियर. ठीक है, तो ये मतलब आपका जो सिग्नल अभी दिख रहा है, दैट इज द डबल साइड बैंड विथ फुल कैरियर. Oh. Okay, so here this is the both the signals, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम? DSB SC signal. डबल साइड बैंड, सॉरी, DSB FC full carrier. After that DSB SC. ठीक है, these are the types under amplitude modulation. DSB SC मतलब सब डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, क्योंकि कैरियर में इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं रहती है ना. योर इंफॉर्मेशन कंटेंट्स इन बोथ दिस साइड बैंड. तो अगर हमने कैरियर निकाल भी दिया तो भी आपके सिग्नल्स में वही इंफॉर्मेशन रहती है. ओके, और कैरियर अगर निकालो तो आपका पावर भी सेव होता है. इसमें हम ये वाला सिग्नल नहीं निकाल लेते हैं, ठीक है, और सिर्फ दो साइड बैंड्स ट्रांसमिट करते हैं. ओके, सो दैट इज DSBSC. अगर इसमें मैंने दोनों में से कोई भी एक भी साइड बैंड ट्रांसमिट किया तो भी मेरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी प्रॉपरली, तो उसको बोलते हैं सिंगल साइड बैंड suppress carrier, SSB SC. Okay, so these are the different types in the amplitude modulation: DSB FC, DSB SC and SSB SC. Okay, उसमें और एक टाइप होता है वेस्टिजियल साइड बैंड. उस केस में क्या होता है कि हम एक साइड बैंड कंप्लीटली ट्रांसमिट करते हैं और दूसरे साइड बैंड के साथ दूसरे सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं. ओके, दूसरे सिग्नल्स का कुछ पार्ट ट्रांसमिट करते हैं. सो दैट इज द वेस्टिजियल साइड बैंड कैरियर्स, सप्रेस कैरियर सिग्नल. ओके, सो दैट also comes under the amplitude modulation. अब इस amplitude modulation की हम bandwidth कैसे निकालेंगे? For the bandwidth calculation, सी अपने पास क्या है? अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ये हो गई लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, सॉरी, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी एंड अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी. सो फॉर बैंडविड्थ we need upper sideband frequency minus lower sideband frequency. Okay, so as we have seen in this figure, ठीक है, तो ये कैरियर फ्रीक्वेंसी, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड. लोअर साइड बैंड इज FC माइनस FM, अपर साइड बैंड इज FC प्लस FM. ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे? अपर साइड बैंड इज FC प्लस FM, okay, minus FC minus FM. So if we solve this, we get it as twice FM.
सो इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द बैंडविड्थ इज ट्वाइस FM, ठीक है, उसकी रेंज कितनी रहेगी, इट इज ट्वाइस FM। यहाँ पे देखो तो ये जो डिफरेंस है यहाँ से इट इज कंसिडर्ड एज FM, ठीक है। तो दोनों पे इसमें आपका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है इट शुड बी ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, है ना। तो जो बैंडविड्थ रहेगी, जो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं उसकी रेंज कितनी रहेगी, ट्वाइस ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ओके। सो till now you know what is the modulation factor, modulation index, then you know the formula for bandwidth, formula for amplitude modulation, okay. So with that you can you calculate the modulation index if the instantaneous voltage of modulating signal and the carrier signal is given as this one, ठीक है। ये क्या है, 40 sin omega mt is the modulating signal and 50 sin omega ct is the carrier signal, ठीक है। अगर ऐसे सिग्नल्स दिए हैं, ठीक है, मैंने बोला कि आप एक तो साइनोसाइडल भी हो सकते हैं सिग्नल्स या फिर कोसाइन भी हो सकते हैं, ओके। यहाँ पे जैसे साइन दिया है, ठीक है, तो इस केस में इफ आई वांट टू सॉल्व दिस, इसमें मुझे क्या करना है, I have to calculate the modulation index, okay. So how will calculate that, ठीक है। अपने को क्या दिया है, मॉड्यूलेशन सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब एम ऑफ टी दिया है, एम ऑफ टी कितना दिया है, 40 साइन ओमेगा एम टी, ठीक है। और कैरियर सिग्नल इज गिवन एज 50 साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। तो इस केस में 40 और 50 ये क्या हो गया, ए एम इज इक्वल्स टू 40 and AC is equals to 50, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स या फिर मॉड्यूलेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, इट इज AM बाय AC, ठीक है। सो इट इज 40 डिवाइडेड बाय 50, सो कितना आएगा, इट कम्स एज 0.8, ठीक है। तो एक तो हम K इज रिप्रेजेंट विथ 0.8 या फिर इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट इज 80% मॉड्यूलेशन, okay. So this modulation is 80% in case of this input signals, ठीक है। अभी समझा आपको, इज इट क्लियर, ओके। So we'll see one more example, okay. The tuned circuit of oscillator in a simple AM transmitter employs a 40 microhenry coil, ठीक है, and a 12 nanofarad capacitor. If the oscillator output is modulated by audio frequency of 5 kilohertz, what are the lower and upper sideband frequencies and the bandwidth required to transmit this amplitude modulated wave, ठीक है। अब इस केस में क्या दिया है कि ऑसिलेटर इज यूज फॉर सिग्नल जनरेशन, ठीक है। तो जो हमारे सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं उसके हमारे स्पेसिफिकेशंस दिए हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉइल एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो ऑसिलेटर की हमको क्या निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कि आपकी ये जो ऑसिलेटर है ये कौन सा है, कैरियर ऑसिलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की हमको फ्रीक्वेंसी दी है 5 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो हमारे पास मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है और ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, we'll calculate it.
अब देखो इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी निकालनी है ऑसिलेटर की, तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? द फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, तो अपने पास एल की वैल्यू है और सी की वैल्यू है। एल इज कॉइल एंड सी इज कैपेसिटर। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या दी है? 40 है ना। कॉइल इज ऑफ 40 माइक्रो हेनरी एंड कैपेसिटर इज ऑफ 12 माइक्रो नैनोफैराड। तो इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो इट इज 2 पाई अंडर रूट, ये कितना दिया है? 40 माइक्रो हेनरी है ना, तो इट इज 10⁻⁻⁶ इंटू कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? इट इज 12 नैनोफैराड, सो इट इज 12 इंटू 10⁻⁻⁹। ओके, सो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेट करके आपको मिलेगी कैरियर की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो कैन एनीबॉडी कैलकुलेट दिस? जस्ट नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल्स. So I calculated this, then it should come as 230 kilohertz. ये 230 किलोहर्ट्ज आना चाहिए क्या? वेरी गुड श्वेता। तो अपने पास अभी क्या है? कैरियर फ्रीक्वेंसी है और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया है। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 5 किलोहर्ट्ज। और क्या निकालना है? वी नीड टू कैलकुलेट लोअर एंड अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। ओके, सो लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम? इट इज एफ एल एस बी, है ना। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी माइनस modulating frequency, that is up lower sideband and upper sideband is fc plus fm. ठीक है, so 230 plus 5, sorry 230 minus 5 will get 2, sorry 225 as lower sideband frequency and upper sideband frequency is 230 plus 5, so it is 235. ओके, अब दोनों निकल गया। सो अपने पास क्या है? लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। देन व्हाट इज द बैंडविड्थ हियर? बैंडविड्थ कैसे निकलती है? अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो 235 माइनस 225 अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड। एक तो आप ऐसा निकाल सकते हो, या फिर इट इज ट्वाइस ऑफ एफ एम। अपने पास सारी ही वैल्यूज है। ठीक है, अपर साइड बैंड मतलब 235 माइनस 25 इज 10 किलो हर्ट्ज एंड ट्वाइस ऑफ एफ एम, एफ एम कितना है? 5 किलो हर्ट्ज, सो इट इज अगेन दी 10। ठीक है, तो बैंडविड्थ आपकी निकली 10। ओके, सो इज इट क्लियर टू एवरीवन हाउ टू कैलकुलेट दी साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज एंड दी bandwidth and modulation index also? Is it clear? Just make the practice to calculate it fastly. जो भी इंफॉर्मेशन दिया है आपको फास्ट निकालना है। ठीक, तो आई विल सी नेक्स्ट। या अब इसी में आपको मॉड्यूलेशन का पावर भी निकालना होता है। ओके, सो कि आपका जो ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल, उसमें कितना पावर है एंड विद दैट पावर आपका सिग्नल कितना ट्रैवल कर सकता है, दैट विल बी डिसाइडेड। ओके, सो हियर इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, आपके यहाँ पे
3 सिग्नल्स है एएम वेव में ही, राइट। एएम में ही आपके 3 टोटल सिग्नल्स होते हैं। कौन से? इट हैज कैरियर एज वेल एज 2 साइड बैंड्स। ओके, तो हम जब पावर कैलकुलेट करते हैं वी नीड टू कंसीडर ऑल दैट सिग्नल्स, सभी सिग्नल्स की पावर आपको निकालनी पड़ती है। सो द कंबाइंड पावर ऑफ ऑल दिस 3 सिग्नल्स यू विल गेट द टोटल पावर। ओके, सो दैट इज द P total. So this total power is given as the carrier signals power plus power in upper sideband plus power in lower sideband. Okay, so based on this power calculation, there are again 2 questions in your GATE exam. So do it carefully. Okay, so this carrier power is given as the total amplitude, or you can say the carrier signal, that is, if we consider the instantaneous value here, so it is AC by root 2 upon R square. The total, this is the total voltage upon resistance. Okay, resistance of antenna here it is considered. So this is the carrier signal divided by resistance is the power in the carrier signal. After that, upper sideband and lower sideband. So sideband power is given as K AC by 2 upon root 2 its square multiplied by R. Okay. This is the side upper sideband, और साइड बैंड्स दोनों भी सेम होते हैं, सो इट हैज सेम पावर। दोनों साइड बैंड्स में पावर जो है वो इक्वल रहेगा। सो इट इज अगेन के ए सी बाय 2 अपॉन रूट 2 स्क्वायर इंटू 1 बाय आर। ठीक है, इसमें के क्या है? इट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन फैक्टर। एसी क्या है? इट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। आर इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ द एंटीना। ओके, सो इफ वी सॉल्व दिस, हमको क्या मिलेगा? इट इज ए सी स्क्वायर अपॉन 2R। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या मिलेगा? आई विल गेट दिस प्लस इफ आई सॉल्व दिस वन, so I'll get k square AC square upon 8R प्लस सेम आएगा इसमें नेक्स्ट केस में AC स्क्वायर अपॉन 8R। ठीक है, ये हो गया कैरियर पावर, एंड दिस इज अपर साइड बैंड पावर एंड लोअर साइड बैंड पावर। सो इंडिविजुअली अगर आपको निकालना है तो यू कैन कैलकुलेट इट यूजिंग दिस। अगर टोटल पावर डायरेक्ट निकालना है तो इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें देखो AC स्क्वायर बाय 2R इज कॉमन। ओके, तो AC स्क्वायर बाय 2R इज नथिंग बट द कैरियर पावर। सो आई रिप्रेजेंट इट एज कैरियर पावर PC। उसके बाद इसमें आएगा 1 कॉमन, so this is twice. So if you solve this, you will get k square upon 2. Okay, so this is the total power equation. ठीक है, so you can calculate the power in amplitude modulated wave if you have the carrier signal power and the modulation index. ठीक है, अगर मतलब कैरियर सिग्नल की पावर है तो आप निकाल सकते हो, और यू हैव द carrier signal amplitude, then also you can calculate the total power present. Okay, so based on this you need to do the calculation. अब इसका मोस्टली रेशियो भी पूछते हैं, दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ carrier power
total power and the carrier power. Okay, so you can just calculate it as total power upon PC is equals to 1 plus k square by 2. Okay, so shall I take one numerical based on this? Okay, we'll solve one numerical for power calculation just within 5 minutes. You just note down these formulas. This is total power. Either you can use this equation or this equation. This is the final one, last का ये. Yeah. स्क्रीन विजिबल है आपको? Okay. Let us solve one example. Uh, uh, if we have a 400 watt carrier which is modulated with the modulation factor or with the modulation depth. Okay, modulation depth is also called as modulation fact for the modulation factor. So modulation depth is given as 80%. So if we have the carrier power and the modulation index, you can calculate it using the formula with PT into PC in the bracket 1 plus m square by 2. Okay, so सिर्फ आपको वैल्यूज ही प्लेस करनी है इसमें. 1 प्लस, अब इसमें m की वैल्यू क्या है? सॉरी, इट इज k. ठीक है, k की वैल्यू आप क्या लोगे? परसेंटेज में नहीं लेना है, यहाँ पे आपको इसमें लेना है. ठीक है, 0.8 square. So this gives you the total power. अब इसमें अलग अलग ये आएगा. एक तो एम्पलीट्यूड दिया रहेगा, वोल्टेज दिया रहेगा, टोटल एम्पलीट्यूड, या फिर करंट दिया रहेगा. तो बेस्ड ऑन दैट, जैसे अपना पावर का इक्वेशन क्या होता है? पावर इज योर वोल्टेज इनटू करंट. ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी वेरिएशन आ सकता है. ठीक है, एक तो वी आई यूज करना पड़ेगा या फिर वी स्क्वायर बाय आर. जो जो वैल्यूज दिए हैं उसके हिसाब से आपको फिर कैलकुलेशन करने पड़ेंगे. और इट इज आई स्क्वायर आर like this. So accordingly you need to calculate the power. So after this we have seen this equation. Sideband, this is also we have covered. Bandwidth, modulation index. Okay, so here just one thing you need to know, that modulation index is a measure of extent of way to which a carrier voltage is carried by the modulating signal. Okay, so if अगर k की वैल्यू आपकी 0 आ रही है, ठीक है, 0 आ रही, उस कैसे 0 आएगी? एक तो मतलब कैरियर का एम्पलीट्यूड कुछ भी नहीं रहेगा. तो कैरियर का एम्पलीट्यूड अगर कुछ है ही नहीं तो उस केस में मॉड्यूलेशन होगा क्या? नहीं होगा. इट इज नॉट पॉसिबल. सो देयर इज नो मॉड्यूलेशन इफ द वैल्यू ऑफ k इज 0 एंड इफ द वैल्यू ऑफ k इज 1. ठीक है, k की वैल्यू 1 है मतलब बोथ द एम्पलीट्यूड्स आर सेम, द मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड एंड द कैरियर एम्पलीट्यूड. सो उस केस में हम क्या बोलेंगे? इट्स अ 100% मॉड्यूलेशन. और अगर k की वैल्यू 1 से ज्यादा जाती है, ठीक है, इफ इट इज मोर देन 1, तो इट इज द ओवर मॉड्यूलेशन. सो ओवर मॉड्यूलेशन इज नॉट कंसिडर्ड इन केस ऑफ द कम्युनिकेशन. ठीक है, ओवर मॉड्यूलेशन के आपके सिग्नल लॉस होने का डर रहता है.
ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो हियर यू कैन सी एकदम आपका एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पे टच हो रहा है ना, तो इट इज दी हैविंग एम्पलीट्यूड विद दी 100% मॉड्यूलेशन। सो कैरियर का एम्पलीट्यूड और सेंट्रल मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड आपका दोनों का सेम है इस केस में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो शेयर इट इज डीसी की जो वैल्यू है, ठीक है, डीसी वैल्यू इज ऑफ 40 and the maximum amplitude of modulating signal is 2 volt. So here you can see it modulation index is 0.05. So इस केस में भी जो है मॉड्यूलेशन जो है मतलब सिग्नल ट्रांसमिट होके आपको क्या लेना पड़ता है, साइड बैंड्स। तो साइड बैंड्स में जो है पावर इज वेरी लेस with this 0.5 modulation index, so it is the under modulation. Okay, and if it is modulation index is 2, ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की एम्पलीट्यूड 2 है और डीसी इज ऑफ 1 वोल्ट। तो इसमें देखो ये जो सिग्नल है, अब ये पोर्शन जो है यहाँ पे इट इज गेट लॉस्ट। ये तो यहाँ पे आपका सिग्नल जो है डिस्कनेक्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट होगा। यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है इट इज नॉट ट्रांसमिटेड, सो दिस इज द ओवर मॉड्यूलेशन। तो हमको क्या चाहिए, व्हेन वी आर डूइंग द मॉड्यूलेशन either it is 1 or it is in the range of 0 to 1. Okay, लेकिन it's very good communication if it is with the range of 0.5 to 1. Okay, so that is the modulation index or modulation depth. Now here you can see the signal, this is the modulating signal. अब इस केस में देखो मॉड्यूलेशन ये जो है आउटर, आई विल शो इट लाइन दिस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ आउटर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, अब एक्चुअल में ऐसे ही होता है सिग्नल आपका कैरियर से भी इसकी एम्पलीट्यूड वेरी होती है, ये ऐसे आउटर जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो ये हो गया आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ओनली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इसकी ये टोटल हो गई एम्पलीट्यूड एम, इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। ओके, सो दिस यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये हो जाएगा ट्वाइस ए मीन। ठीक है, this is the amplitude, minimum amplitude of the modulating signal and this is the maximum amplitude of the modulating signal. अब k के वैल्यू जो है वो हम कैसे देते हैं, am by ac। ओके, तो ये जो a max है, ठीक है, a max, ओके, तो ये a max में आप देख सकते हो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ am आता है एज वेल एज ट्वाइस ऑफ ac। ठीक है, तो ये 2a max is given as 2ac plus 2am। ठीक है, 2ac plus यहाँ से यहाँ तक क्या क्या आया, am 2 times and this ac, है ना, so it is twice of ac plus twice of am। वैसे ही twice of a mean ये जो निकाला है, इसको अगर हम twice of am को इससे माइनस करते हैं, so we'll get twice of a mean। So this is the another way of calculating the value of k। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स आप अगर आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में, देन ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन डेप्थ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यू कैन से एनीथिंग। Okay, so this is twice of a max minus twice of a mean upon twice of a max plus twice of a mean. If we solve it, we get a max minus a mean upon ac, or it is am by ac. So with the help of amplitudes of the modulating signal, carrier signal or the modulated signal, you can also calculate the modulation depth. This is the again power calculation. This is an example again.
Okay, determine the maximum sideband power if the carrier output is 1 kilopad and calculate the total maximum transmitted power. ठीक है, तो हमको क्या दिया है, अगेन कैरियर पावर इज गिवन और इससे हमको साइड बैंड की पावर्स निकालनी है और टोटल पावर निकालनी है. ठीक है, सो हाउ विल कैलकुलेट दैट? कैन एनीवन कैलकुलेट दिस? By using these formulas you can calculate this, so I will not go in detail of this example. Next we'll see the demodulation of the AM signal. Okay, अब demodulation में क्या होता है, we need to recollect the signal from the received signal. मतलब जो हमने modulated signal transmit किया उससे हमको original signal निकालना होता है. Okay, so in this case we have again two methods, envelope or non-coherent detection and second is synchronize or coherent demodulation. Okay, so this is the envelope or the diode AM detector. ठीक है, तो इसमें क्या है, वी ट्रांसमिट इनपुट क्या रहेगा, अब हम रिसीवर साइड की बात कर रहे हैं. ठीक है, अभी हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा ऑन दी AM साइड. बिफोर गोइंग टू दिस विल जस्ट सी फ्यू एग्जाम that how the AM signal is generated. Okay, so before going to the demodulation side, okay, so here we have amplitude modulation or amplitude modulator. Okay, AM modulator, how these signals are generated. So in this case, we'll use mostly these signals are generated using the मतलब उसमें भी दो अलग अलग टाइप के लो लेवल मॉड्यूलेशन एंड हाई लेवल मॉड्यूलेशन. तो इन द हाई लेवल मॉड्यूलेशन, how these signals are generated? First, these signals are transmitted to the current pulse generator. ठीक है, करंट पल्स जनरेटर को हम क्या देते हैं, we give the two inputs, कैरियर सिग्नल मतलब RF सिग्नल या कैरियर सिग्नल, हायर सिग्नल, आप कुछ भी बोल सकते हो, and another is modulating signal. ठीक है, that is M of T. ये वो हम देंगे कैरियर पल्स जनरेटर को, इट विल जनरेट, सॉरी, करंट पल्स जनरेटर, इट विल जनरेट द पल्सेस ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी and its output is then given to the tune circuit. And its output is you will get as AM wave. So यहाँ पे आपको अगर आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज लाइक दिस, ठीक है, तो ये हम इनपुट में दे रहे हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और कैरियर सिग्नल मतलब आपके हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स रहेंगे. ठीक है, so this is also given as an input. So at this place, okay, you will get the output as the pulses with the amplitude which is equivalent to the modulating signal. Okay? Likewise, you will get the pulses. ये जो एम्पलीट्यूड है वो किसके हिसाब से रहेंगे, एज पर दिस सिग्नल. ओके, एंड व्हेन यू गिव दिस सिग्नल टू द ट्यून सर्किट, तो ट्यून सर्किट में आपको क्या आउटपुट मिलेगा, you will get the output as AM wave. Okay, so this is the
AM wave that will get at the output of the tune circuit. अब ये जो current pulse generator है, इसके इसमें you can use any circuit like class C amplifier can be used for the current pulse generation. Okay, then plate modulated class C amplifier is there. So it is not in detail because mostly the questions are not asked on this topic, so we'll not go in detail for this. Next you need to know about the modulators, sorry, demodulators. तो demodulators में क्या क्या है? Again, envelope detector and diode detector. So this is the इनपुट. ठीक है, डिटेक्टर है, रिसीवर साइड है, मतलब इनपुट क्या रहेगा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. So that amplitude modulated signals are given to the envelope detector. अब envelope detector is just like your rectifier circuit. So diode is connected there. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इनपुट दिया, तो यहाँ इस प्लेस पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा? जस्ट आउटपुट ऑफ द डायोड. यू विल गेट दी यहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव साइकिल मिलेगी, है ना. डायोड विल क्लिप द नेगेटिव साइकिल, and that is the high frequency signal. After that the capacitor is connected. So capacitor क्या करेगा? It will allow on the high frequency signal. High frequency signals को ground करेगा, low frequency signals को pass करेगा. So at the resistor you will get the output, that is the modulating signal जो हमने receiver में transmit की थी. Okay, so it is shown here. ये हमने input दिया, ठीक है, ये आपके डायोड पे आउटपुट आएगा, एंड दिस इज द लास्ट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विच वी गेट द आउटपुट. ठीक है, तो हमको एग्जैक्टली सिग्नल नहीं मिलते हैं, यू विल गेट द सिग्नल्स लाइक दिस distorted one. So you need to remove noise from this. Okay, so this is the another demodulator circuit. Here again you will have the AM modulated input आएगा, उसको हम लोकल ऑसिलेटर के साथ कंबाइन करेंगे. So that signal is then given to the low pass filter. It will just pass the low frequency signal, and at the output you will get the M of D, which is nothing but the modulating signal. Okay, so this is not required. Okay, so this we have seen at the. Is it visible to you? Yeah. So this is the AM transmitter and receiver circuit. So in the transmitter, you can see the different circuits. So oscillator is there. So main आपका oscillator जो है वो carrier signal generation के लिए आएगा, और फिर input signal आपके यहाँ से आ रहे हैं. ठीक है, transducer होगा या it may be anything. Then it requires the amplifier circuit, then modulator driver circuit. So this is given to the modulated amplifier. ठीक है, तो दोनों भी हम कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम यहाँ एम्पलीफायर को दे रहे हैं, मॉड्यूलेटेड एम्पलीफायर. सो एट दिस एंड यू विल गेट दी हाई लेवल मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड लो लेवल. तो आपको जैसे भी ट्रांसमिट करने हैं अकॉर्डिंगली यू नीड टू टेक दी आउटपुट. एंड यहाँ से वो एंटीना से ट्रांसमिट हो गए, यहाँ एंटीना पे दिस इज द रिसीवर साइड. So at the receiver end you have the RF amplification. It will amplify the received signal. Then detector में any detector circuit, envelope या coherent detector is there. So it will demodulate the signal, and the demodulated signal is given to the audio amplifier. And again maybe power amplifiers are also there. So यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो. amplifiers जो है कितने यूज करने, दैट डिपेंड्स ऑन योर सिग्नल स्ट्रेंथ. अगर सिग्नल स्ट्रेंथ लो है तो आपको ज्यादा लेवल्स एम्पलीफायर की यूज करनी पड़ती है. ओके, so this is about the amplifier circuits. This is the your transmitter and this is the receiver. अब receiver में भी दो टाइप्स होते हैं. You have tune frequency tune radio frequency receiver and super heterodyne receiver. सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर जो है,
सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में डिफरेंस सिर्फ क्या होता है कि ट्यून रिसीवर में ट्यूनिंग और उसका बैंडविड्थ को मैच करना, दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. So that's why we go for the super heterodyne receiver. So here I'll just draw the super heterodyne receiver. उसमें क्या फीचर्स है उतना बता देती. In the super heterodyne receiver we use, it has RF stage. RF stage मतलब it's a radio frequency amplifier again. ठीक है, यहाँ पे आपके सिग्नल्स रिसीव होंगे थ्रू द एंटीना. यहाँ से ये सिग्नल दिए जाते हैं मिक्सर को. तो ये सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. मिक्स में हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड दी लोकल ऑसिलेटर सिग्नल. सो इससे आपका जो ट्यूनिंग का जो प्रॉब्लम था इन द ट्यून रिसीवर, दैट विल गेट सॉल्व. क्योंकि यहाँ पे हम इंटरमीडिएट सिग्नल लेते हैं. इंटरमीडिएट सिग्नल मतलब यहाँ पे जो सिग्नल रिसीव हुए, okay, this is the signal received frequency, and suppose f0 is the local oscillator frequency. So here at the output you will get f0 minus fs. ठीक है, तो यहाँ जितना भी अगर वेरिएशन हो रहा है, so that will get solved with this difference. क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे. यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा आई तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम कम कर देंगे, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी कम आई तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं. तो likewise this mixer will manage the difference between the signals received. Okay, then here it is IF amplifier, that intermediate frequency amplifier. Then we have the detector circuit, detector या demodulator. Then it is given to again audio and power amplifier. So this is the theoretical part which is mostly not asked in the gate exams. Okay, so next in a short time we'll see the frequency modulation. Here this is the output. But you must know these stages. What is there in the super heterodyne receiver? Super heterodyne receiver क्यों prefer किया जाता है on the basis of other receiver circuits? Okay. So that is very important. After that we'll see frequency modulation. Now in the frequency modulation, uh, okay, so here in the frequency modulation we vary the frequency of the carrier signal. Okay, this is the carrier signal. तो जैसे यहाँ पे कैसे होता है, दिस इज द इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड. यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रही है. तो जैसे एम्पलीट्यूड इंक्रीज होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल गेट इंक्रीज. जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी. ओके, तो आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या करना पड़ता है, एक हायर कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को वैरी करनी होती है ना. तो फ्रीक्वेंसी वैरी करनी है हमको एज पर द इनपुट वोल्टेज. ओके, as per the input voltage we need to vary the frequency of the high carrier signal. So mostly this FM signals are generated using the uh, voltage control oscillator. Okay, VCOs are there. So voltage control oscillators are used for the generation of frequency modulated signal. Now here again you will have the frequency different frequency bands. Okay, suppose this is the frequency range and this is center is always your carrier frequency. ठीक है, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी
मतलब वेरिएशन इतना होता है, यू हैव वेरियस फ्रीक्वेंसी बैंड्स इन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे ये जो डिफरेंस होता है, it is the it is differ by the modulating signal FM. Okay, this signal is, so likewise it contains various different bands in the frequency modulation. Okay. Now इस केस में जितनी हमारी एम्पलीट्यूड वारी होंगी उसके हिसाब से आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन मीन्स फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। ओके, so here in this case the frequency modulation is given as, that is, if I represent that frequency modulation with MF, okay, frequency modulation index, okay, so this modulation index is given as frequency deviation nothing but the difference in the frequency to the modulating frequency. So this frequency deviation is given with del f, and modulating frequency is given as fm. Okay, so this is the modulation index in case of frequency modulation. ठीक है, अब इसमें भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स के हिसाब से आपके साइड बैंड्स जो है वो वैरी होंगे। अगर फ्रीक्वेंसी आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है दैट कम्स एज 0.5, ओके, अगर 0.5 है तो साइड बैंड्स कितने रहेंगे, इट हैज 2 साइड बैंड्स। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 है तो साइड बैंड्स आपके 3 हो जाएंगे। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 2 है तो साइड बैंड्स विल बी 4। ठीक है, तो लाइकवाइज मॉड्यूलेशन इंडेक्स से आपके यहाँ पे जो साइड बैंड्स है वो कितने रहेंगे, दैट विल मैटर। नाउ इन दिस केस the frequency modulation, actually there are various signals comes in this, so that fm signal, that fm modulated signal जो है उसका जो equation है that is little bit complicated. So it is given as, suppose this instantaneous value is given as this e a is equals to a sine omega ct plus mf sine omega mt. So this is the modulated wave signal, FM modulated wave signal. MF is modulation index, that is del F by FM. Okay, and again here the bandwidth. Okay, so bandwidth in the frequency modulated signal is given as twice of MF modulation index plus 1 into FM. Okay, FM is the modulating frequency. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब एम एफ इज रिप्लेस विथ एफ एम डेल एफ अपॉन एफ एम, है ना। अगर उसके साथ रिप्लेस किया तो हमको क्या मिलेगा, इट मे कम एज 2 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी m of t. Okay, so you can calculate bandwidth using this or this one. ठीक है, twice mf plus 1 into fm or twice maximum deviation frequency plus maximum modulating frequency. So mostly these calculations are there in the frequency modulation. And for frequency modulator, you just note down this.
next part which mostly asked in the GATE exam is related with the digital now. So it's difficult to cover that digital part completely. So I'll just guide you that to first you go through the information theory. ठीक है, इंफॉर्मेशन थ्योरी में आप थोड़ा स्टार्ट करो, जैसे कि एंट्रोपी है, व्हाट इज एंट्रोपी, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, एंड आफ्टर दैट channel capacity calculation. ठीक है, so channel capacity theorem is there, so you need to do that theorem. Then different digital modulation techniques are there, जैसे कि उसमें digital modulation जो है, in the digital modulation it has again different types. ठीक है, तो मोस्टली जो मैंने क्वेश्चंस देखे इसमें, तो एंट्रोपी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, आफ्टर दैट चैनल कैपेसिटी कैलकुलेशन के ऊपर, आफ्टर दैट डिजिटल मॉड्यूलेशन में जैसे अलग अलग टाइप्स है. ठीक है, इट हैज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट केइंग, एम्पलीट्यूड शिफ्ट केइंग, फेज शिफ्ट केइंग. ठीक है, ये बेसिक टाइप्स है. उसके बाद इसमें पल्स कोड मॉड्यूलेशन आता है. ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, देन पल्स मॉड्यूलेशन है. तो पल्स मॉड्यूलेशन में अगेन यू हैव पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. ठीक है, यू जस्ट रेफर दिस टॉपिक्स. अगर अपनी नेक्स्ट क्लास होती है, सो आई विल कवर दिस डिजिटल communication part. Okay, and again some coding related is there, that is mostly the questions asked on the Hamming distance, Hamming code. Okay, so you need to do it in detail. Okay, so Hamming code you need to prefer. Then information theory. So if possible, I will take this part in the next class. Okay, so till that you just prepare well for the exam. Okay, फाइनल ईयर को थोड़ा टाइम कम है, और जो थर्ड ईयर में है, आप जो अभी पढ़ रहे हो एटलीस्ट वो सब्जेक्ट पे जितना गेट का सिलेबस है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा पढ़ते समय उसको कवर करते जाओ. ओके, सो with this we'll end today's lecture. Okay, so yes, Praveen sir, anything is left? Hello, Praveen sir. हेलो मैम. हाँ सर. सो सर अटेंडेंस वगैरह हो गया इनका? यस मैम, आई हैव ऑलरेडी टेकन द स्क्रीनशॉट. Okay sir, so can we end? ओके मैम, यू कैन. Okay sir, so we'll stop today here. Yeah, okay. You students prepare well, all the best for your GATE exam. Okay, and prepare all the subjects. Okay, you can leave the meeting now. ओके, Any थैंक doubt यू. to anyone? Okay.